Let's start. Yes, bhai. Start. Sai Ram, offering my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. A loving Sai Ram and welcome to all participants for today's very interesting fifth session of the program Atirati in Apatti. We have with us Dr. Nilesh Usgaonkar. Doctor has completed MBBS DCH from Goa Medical College. For last 25 years, having pediatric practice initially in Kankona, now in Margao, he is a resource person at the prestigious Navodaya Leadership Institute under Ministry of Human Resource Development, Kankona. He is also a managing committee member of Lok Vishwas Pratishthan, Dhavdi, Fonda. He is the president of Lakshmi Narayan Trust, MAPSA, which is a residential center for mentally challenged adults who don't have parents, which is one of the unique projects coming up in Bicholin Taluka. They also promote skills of special students from different schools by holding exhibitions and workshops. He is the trustee of Sri Swami Samarth Mandir, Mersis. Medical awareness is very important in day to day life, as we have experienced around 4.5 lakh people have died due to COVID, out of which a lot of people have died due to lack of knowledge of COVID symptoms and ways in which it could be detected, like checking oxygen saturation, etc. Collected data also shows that around 1.5 lakh people die every year because they are not given proper first aid on time because of lack of awareness and training. To save a life, one should have a thorough knowledge about the different techniques involved in giving timely first aid. To understand that, I call upon Dr. Nilesh Usgaonkar to please take over the session so as to help us become Atirati in Apatti. Jai Sai Ram. Namaskar, dear audience. You have already joined today's session. Sai Ram, dear brothers and sisters. In fact, today I am very much delighted to be with you all for this session. I am very much grateful to Sri Satya Sai Seva Organization Goa for inviting me and giving me an opportunity to speak on this topic on first aid. I pay my gratitude to Siddhesh Prabhudesai and Dharmavaram Reddy, who has given me this responsibility of conducting this session. So just to begin with the topic on first aid, I would just like to discuss with you all. मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी जानकारी देने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक जो उपचार रहता है वो क्या होता है। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे अचानक हमारी शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है और ऐसे समय में हमें डॉक्टर की जरूरत रहती या एम्बुलेंस सर्विस की जरूरत रहती। कई बार हमने देखा है कि ऐसे परिस्थिति में दोनों उपलब्ध नहीं होते, डॉक्टर भी नहीं मिलते और एम्बुलेंस सर्विस भी जो हमको उसकी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं रहती। इसलिए वो समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है जिसमें हमको उस व्यक्ति को जिसका तबीयत एकदम खराब है, जिसकी तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, उनको मदद करना बहुत जरूरी है। और हमें हमारे हर एक इस समाज के अंदर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस समाज के अंदर हर एक की एक कर्तव्य रहता है कि उसे उस जो हम उसको मदद करते हैं और पूरे सेवा भाव से करना चाहिए। The first thing, you have to remain yourself cool and calm. Then the next is immediately, because here what you require is the help of a doctor, the treatment from the doctor, and for that you have to see to it that the victim reaches to the hospital as early as possible. So for that you have to have contact numbers of two people. One is a local doctor or the local hospital where you can ship the patient, and second thing, we should have a proper ambulance service. We have to call the ambulance service as early as possible. Most of the time what we have seen, people will call 108. But my experience tells me that it takes minimum half an hour.
or minimum sometimes even more than half an hour for the ambulance to reach, and that is very crucial time. So what you can do is, my suggestion is, you can just ask or you can just keep contact numbers of local hospitals which are there around. I request all the owners of the local hospital to immediately send this ambulance so that we can save a life. This is the second point. Third point, what we would like to discuss here is, see, there are certain conditions where you are not supposed to waste any of your time. Remember, it is very crucial. आप कोई सीवियर एक्सीडेंट्स की विक्टिम को आप फर्स्ट एड देने जाते हैं तो वहां पर ज्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई सीवियर ब्लीडिंग जहाँ पे बहुत खून बह रहा है, ज्यादा करके सिर से ब्लीडिंग होती है, हेड इंजरी होती है, नाक से या कान से खून बहते रहता है, ये जो कंडीशंस है वो एकदम सीरियस कंडीशंस है जहाँ पर आपको कोई आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा कंडीशन है सीवियर बर्न्स, यानी ऐसे बर्न्स, थर्ड डिग्री बर्न जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे पूरा शरीर हर अवयव हर भाग जला हुआ है, इतना जला हुआ है कि एकदम काला अंदर का जो भाग दिखता है वो एकदम काला रहता है। या हम डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं। ये आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से परसेंटेज ऑफ बर्न्स गिनते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति को 25% से भी ज्यादा बर्न्स है तो आपको कोई भी हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं, तुरंत उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स की जरूरत है, सलाइन की जरूरत है। चौथा एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें फ्रैक्चर्स हमने कई बार देखे, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज कंपाउंड फ्रैक्चर्स। कंपाउंड फ्रैक्चर है जहाँ पे हड्डी टूट के शरीर से बाहर आती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा उसको हाथ नहीं लगाना है, धीरे से उसको जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है। और पांचवी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ रहता है। जब भी कोई पेशेंट आपको बेहोश दिखाई देता है तो ज्यादा उसको मदद तो करना है, जो मैं आपको आगे बताने वाला किस तरह से ऐसे पेशेंट को मदद करते हैं, और ज्यादा करके बिना कोई आपका समय बर्बाद करके ऐसे व्यक्ति को आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये हो गए तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा है पॉइजनिंग का। कभी कभी हम देखते हैं कि घर में या जहाँ पे आप काम करते हो या कहीं पे भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, या छोटे छोटे बच्चे मिस्टेक से घर में नानी नाना दादा दादी के दवाइयाँ रहती है वो खा बैठते हैं, कोई दवाई पी लेता है, सिरप वगैरह तो वो भी पी लेता है। या कभी कभार हमने देखे हैं ऐसे लोग हैं जो गोलियां खाते हैं, केरोसिन पीते हैं, फिनॉल पीते हैं, डीडीटी पीते हैं, अलग प्रकार की जो चीजें हैं जिससे पॉइजनिंग होती है, अंदर नुकसान शरीर पूरे शरीर को नुकसान कर देता है। तो ऐसे पॉइजनिंग केसेस जब भी है तो आपको पहली चीज क्या करना है, अगर आपको बुलाया जाता है, आप वहीं पे रहते हो जहाँ पर ये केस हुई है, तो समझना आपको सबसे पहले उस जहाँ पर वो लाश पड़ी हुई है वहां पर उसके आजू बाजू में जो चीजें आपको मिलती है वो आपकी कस्टडी में रहती है, ताकि ये सारी चीजें, जैसे आप एक बोतल है, कोई शीशी है, कोई टेबलेट की स्ट्रिप है, तो तुरंत आपको आपके कस्टडी में रहना है, ताकि आपको उस डॉक्टर को आप दे सकते हैं जहाँ पे पेशेंट को भेजा है, ताकि वहाँ के डॉक्टर भी उसको बराबर से ट्रीटमेंट दे पाए। तो और एक चीज जो हम कर सकते हैं घर पे या कहीं पे भी हम जब पॉइजनिंग केस मिलती है, हम उसको यूनिवर्सल एंटीडोट, प्लीज रिमेंबर दिस, यूनिवर्सल एंटीडोट करके एक चीज है जो हम तुरंत पॉइजनिंग केस में दे सकते हैं। सिर्फ अल्कोहल पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग, आयरन की गोलियां कभी भी लेते हैं बच्चे बाय मिस्टेक, आयरन की पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग, ये तीन चीजों में यूनिवर्सल एंटीडोट काम नहीं करता। तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, देखिए हम घर पे भी बना सकते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। एक आधा कप पानी ले लो, उसमें 1.5 चम्मच चारकोल सुना आपने? तो चारकोल, यू कैन यूज दिस चारकोल, यू कैन बर्न a coconut covering, you can burn a small piece of wood and prepare charcoal out of it. ये चारकोल जो 1.5 चम्मच चारकोल है वो आधा कप पानी में घोल के तुरंत उसको पिलाना है। इसमें क्या होता है, ये चारकोल जब अंदर चला जाता है तो जितने सारे ज्यादा एक्सेस में जो चीजें हैं, समझो डीडीटी है, फिनॉल है, जो भी चीज उसने खाई है उसको तुरंत उसको एब्जॉर्ब करता है, ताकि उसकी एडवर्स इफेक्ट्स, जो चीजें पॉइजन जो खा चुका है उसका एडवर्स इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होता, बड़ा उसको बहुत फर्क आता है। तो पॉइजनिंग में आप आराम से हम
यूनिवर्सल एंटीडोट घर में बना के तुरंत दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने जाते हो, तब अगर आपको पता चलता कि वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा, उसकी सांस एकदम बंद हो चुकी है, तब ध्यान में रखना, आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना बहुत जरूरी है। ये मैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किस तरह से देना है, किस प्रकार के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड से, वो आपके मैं बाद में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं। तो जब भी नो रेस्पिरेशन, इमीडिएट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, नो ब्रीदिंग, इमीडिएट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये हमेशा ध्यान में रखना। और एक बात है, जब भी आप पेशेंट के पास जाते हैं, कोई विक्टिम के पास जाते हैं और समझो उसका हार्ट नहीं पंप कर रहा है, तो कैसा पता चलेगा, आपको उसका पल्स देखना। पल्स कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा हाथ है, बाहर का जो बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर ऑफ आवर फोrearm, the wrist which is there here, this is the wrist. We have to place 3 fingers at the joint at the wrist and try to feel the pulse. Can you really feel this pulse? Everybody just try to feel your pulse. Yes. This is the indication that your heart is pumping very well. कभी कभार ऐसे विक्टिम्स हम देखते हैं जहाँ पर उसकी हार्ट पंपिंग उसकी बंद होती है। ऐसे समय में ऐसे विक्टिम को एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, उसको हार्ट पंप करने के लिए, ताकि उसको मदद करे वापस पंप करने के लिए, हम क्या देते हैं, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। वो भी मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला। तो ये हो गए बहुत जरूरी मुद्दे। बाकी जो मुद्दे हैं जो हम फर्स्ट एड देने जाते हैं, वो जनरल केयर ऑफ द विक्टिम। जब भी हम देखते हैं कोई विक्टिम पड़ा हुआ है, वो बेहोश, एक ध्यान रखना है, उसको कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए नहीं। बहुत बार हम देखते हैं पब्लिक क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कॉफी बना के लेके आते हैं, नींबू शरबत बना के लेते हैं, सोडा लेके आते हैं, बिल्कुल उनको कुछ देना नहीं है, या कुछ खाने के लिए भी बिल्कुल नहीं देना है। सेकेंड थिंग व्हाट वी डू इज, ऐसे पेशेंट को हमेशा हमको, जो लेटा हुआ है, जो एकदम तकलीफ में है, उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसके जो कपड़े हैं एकदम टाइट फिटिंग, इसलिए टाइट बटन जो है वो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। अगर लंबा शर्ट है, कपलिंग है, तो उससे कपलिंग छोड़ सकते हैं। बेल्ट है, वेस्ट बेल्ट है, वो थोड़ा लूज करना, अब पूरा उसको थोड़ा कपड़े उसके थोड़ा लूज करके, ध्यान में रखना है, उसको नंगा नहीं करना। यू हैव टू लूजन द क्लोथ्स, और आराम से, ताकि वो आराम से रिलैक्स हो जाए। उसके बाद पोजीशन ऑफ द विक्टिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार जो बेहोश लोग होते हैं, वो कभी कभार उल्टियां कर सकते हैं। स्नेक बाइट के पर सांप अगर काटा है, जहरीला सांप अगर काटता है, तो उल्टियां हो सकती है। या कभी कभार इलेक्ट्रिक बर्न्स, या कभी कभार कोई भी पॉइजनिंग, जैसे हम डीडीटी पॉइजनिंग या फिनोल पॉइजनिंग, इसमें भी उल्टियां होने का चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे विक्टिम को हमेशा उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड में उसको डालना। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये अगर विक्टिम है, ये अगर विक्टिम है, तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, देखिए ये हमारा शरीर है, पेट, अभी जब भी किसी को हम पूछते पेट कहाँ है, तो बताते हैं पेट यहाँ पे। पेट यहाँ पे नहीं रहता, स्टमक बैग लेफ्ट साइड में रहता है। जो खाना खाया हुआ रहता है उसके लेफ्ट साइड में। अगर पेशेंट बेहोश है, तो उसको जब उल्टी होती है, तो पेट के थैली में से खाना तुरंत ऊपर निकलता है, कभी कभी छाती के अंदर जा सकता है, पेशेंट चोक होकर मर सकता है। तो सबसे सेफ पोजीशन, या कभी कभार राइट साइड में डालते हैं लोग, वो भी एकदम डेंजरस है। अगर राइट साइड में डालें तो क्या होता है, स्टमक बैग में से जो खाना है वो नीचे उतर के सीधा नीचे आता है, मुंह के अंदर आता है, और थोड़ा जो वॉमिटर्स जो है वो छाती के अंदर जाके चोक कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका पोजीशन, उसको हम कहते हैं रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में उसको हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालना बहुत जरूरी है। उसका नेक थोड़ा एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है, ताकि वो से सांस ले। उसका हाथ, जो मैं आपको बाद में डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, मेन पॉइंट क्या है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो पेशेंट कभी-कभी शॉक में चला जाता है, स्नेक बाइट में शॉक में चला जाता है पेशेंट, बर्न्स वुंड के अंदर भी शॉक में पेशेंट चला जाता है। तो शॉक में न जाने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, इस तरह का कोई कवर लेके उसको बॉडी के ऊपर उसको अच्छी तरह से कवर करना। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालिए विक्टिम को, और उसको पूरी अच्छी तरह से कवर करके रखिए, ताकि उसके टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें।
पेशेंट शुड नॉट गो इन शॉक, एकदम ठंडा पड़ा हुआ रहता है पेशेंट, तो उसको अच्छी तरह से कवर करके रखना है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है, लेफ्ट पेटल पोजीशन में डालना है, कपड़े थोड़ा लूज करके रखना है और उसको अच्छी तरह से, ये चीजें बहुत जरूरी है। जब पता चला कि एम्बुलेंस आ गई है तो क्या होता है, एकदम खुश होते हैं, चला चलो ये पेशेंट भी हम भेज रहे हैं पेशेंट हॉस्पिटल। जब हम शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, एक चीज ध्यान में रखना है, आपको आपके पास अगर मैट्रेस है, कोई सॉफ्ट गद्दी है तो गद्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह पे जाकर गद्दी नहीं है तो अगर आपके पास आपका राइटिंग टेबल वगैरह अगर बेडशीट है तो बेडशीट अच्छी तरह से बेडशीट फैला के, ऐसे फैला के उस विक्टिम को सुलाना है और चारों तरफ 4 लोगों को पकड़ के उसको धीरे से एकदम धीमी गति से उसको उठा के उसको एम्बुलेंस में डालना। कभी कभार देखा है, समझो एक बाजू अगर विवेकानंद पाटिल ने पकड़ा, दूसरी तरफ डॉक्टर नीलेश ने पकड़ा, तो ये बराबर नहीं, क्योंकि हाइट में फर्क है। तो जब भी 4 लोग जो उठाने वाले हैं वो एक ही कद के होना चाहिए, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज स्लाइड होके विक्टिम नीचे उठेगा, उसको तकलीफ हो जाएगी। तो इस तरह से उसको विक्टिम को शिफ्ट करना है। एक बार शिफ्ट करा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव। अभी उसके बाद हमारे जीवन के अंदर जितने सारे इमरजेंसी आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इमरजेंसी जो हम एकदम मामूली सी इमरजेंसी रहती है और सभी को ये इसका अनुभव आया होगा रहता है, बचपन में तो हमको ये हमेशा रहता है, वो है एब्रेशन। व्हाट इज एब्रेशन? एब्रेशन यानी एक मामूली सी चोट, खरोच जिसको हम बोलते हैं। जब भी हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, फिसल जाते हैं, अगर ये जो जमीन अगर एकदम रफ है, समझो एकदम सीमेंट फ्लोर है मगर उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, या प्लेग्राउंड पे बच्चे, स्कूल के बच्चे खेलते हैं, शाम को जाके खेलते हैं, तभी फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तभी क्या होता है, जिस मिट्टी में वो गिरते हैं उनमें छोटे छोटे पत्थर है, तो ये पत्थर लगने से या कोई सीमेंट सरफेस अगर रफ है उससे उस व्यक्ति को चोट लगती है, जिसको हम कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन किस तरह से उसको निपटना, बहुत सिंपल है, आप लोग सभी लोग करते हैं। ध्यान में रखना, डेटॉल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, देखो वो जो घाव है उसको अच्छे तरह धोना है, मगर धोने से पहले हमारे हाथ को खुद को धोना है। रिमेंबर दिस, हम टेंशन में कुछ खाते रहते हैं, वहां पे एब्रेशन हुआ तो जाके उसी हाथ से तेल का हाथ उसको वहां पे लगाएंगे, वैसा नहीं करना है। पहले हमको हाथ अच्छी तरह धोना है, उसके बाद हमको उस चोट को मतलब करना। किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा, देखो मेडिकल स्टोर के अंदर छोटे छोटे गॉज पीसेस मिलते हैं, ऐसे छोटे गॉज पीस जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेराइल होते हैं, एकदम पैकिंग में आता है, ये स्टेराइल गॉज पीस है। आपको पहले गॉज पीस से साबुन का पानी लगा के उसको अच्छी तरह से धोना है, ऐसे धोते समय हमको ये मूवमेंट नहीं करना है, जितना बाजू में जितनी गंदगी है वो पहले निकाल, उसके बाद ये फेंकना है, दूसरा गॉज पीस लेके उसको अच्छी तरह से साबुन के पानी से अच्छी तरह से धोना है। ये धोने के बाद उसको सुखाना है तीसरे गॉज पीस से, उसको सुखा के बाद में आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे पूछेंगे या कल मुझे फोन आएगा, डॉक्टर साहब कौन सा इस्तेमाल करना है एंटीसेप्टिक, मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया, ओके सकते हैं, उस लगा के उसको अच्छी तरह से ड्रेसिंग करने के लिए आप इस तरह का सिंपल रोल जो है गॉज रोल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने लगाया यहाँ पे, तो इसको या मैं यहाँ पे मेरा वॉलंटियर जो है यहाँ पे लगा सुखाने के बाद हम उसको अच्छी तरह से, इस मामूली सी चोट जो हम नॉर्मली कई बार हमारे घर में बहुत बार ऐसे होते हैं, हमको सबको अनुभव है, इस तरह से बात है। अब ध्यान में रखना है, ये बांधने के बाद समझो 24 घंटे के अंदर यहाँ पे गिलापन आ जाता है, ये सोप हो जाता है, यहाँ पे पानी जैसा आता है या पस होता है, इसका मतलब ये है आपने अच्छी तरह से धोया नहीं। तो दोबारा आपको ये सब उसी दिन 24 घंटे के बाद या अगले दिन या 2 दिन के बाद तो निकालना है। निकालने के बाद वापस उसको धो के वापस उसको सुखा के ड्राई करके उसके वापस दोबारा आपको ड्रेसिंग, जब तक ये ड्राई नहीं रहता आपको दोबारा या फिर 3 बार
बार आपको ड्रेसिंग बदलना पड़ता है। 5 या 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद वो भर जाता है। तो ये हुआ एब्रेशन। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा जो इमरजेंसी जो है वो बर्न्स। बर्न्स सुना होगा आपने, आपको भी एक्सपीरियंस आया होगा, लेडीज को तो बहुत आता होगा ये एक्सपीरियंस। बर्न्स के कॉजेस क्या है, पहले हम आपसे मैं पूछता हूँ। बर्न्स के कॉजेस बहुत सारे रहते हैं। सबसे पहला फ्लेम्स, जो जो आग के जो फ्लेम्स है उससे हमको बर्न्स हो सकते हैं। दूसरा हॉट ऑब्जेक्ट्स। अभी हॉट ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे, किचन सेक्शन के अंदर, किचन में बर्तन जो है गर्म बर्तन, उससे हम बच सकते हैं। इस्त्री जब हम करते हैं उससे हमको हॉट बर्न्स हो सकता है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। तीसरा, अगर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब रहता है, गर्म करके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको भी बर्न्स हो सकता है, या लैब टेक्नीशियन को हो सकता है। तो इस तरह के हॉट ऑब्जेक्ट से भी हमको बर्न्स आता है। तीसरा हॉट लिक्विड्स। हॉट लिक्विड्स अगेन किचन के अंदर, दाल, गरम पानी, गरम दूध अगर हमारे ऊपर गिर जाता है तो हमको बर्न्स हो सकता है। चौथा एसिड्स। अभी एसिड्स यूजुअली इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में या घर में भी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से भी हमको बर्न्स हो सकता है। या कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज, ये भी एक केमिकल है जिससे हमको बर्न्स हो सकता है। देन व्हाट आर अदर कॉजेस, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स यानी इलेक्ट्रिक करंट से जो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है वहीं पे हमको बर्न्स हो सकता है। अगर हाई वोल्टेज की है तो उस पर एक पॉइंट ऑफ एंट्री रहती है और पॉइंट ऑफ एग्जिट, दो जगह पे बर्न्स हो दिखाई देता है। पांचवा रेडिएशन जो आते हैं, नॉर्मली हमने देखे हैं रेडिएशंस बर्न्स, ये फर्स्ट एड के लिए नहीं, मगर ऐसे आपको जानकारी देता हूँ, ज्यादातर जो पेशेंट जो रेडियोथेरेपी रहते हैं, कैंसर के पेशेंट है, तो उनके ऊपर रेडिएशन चल रहे हैं, उनको रेडिएशन की वजह से बर्न्स होते हैं। और लास्ट फ्रिक्शन कैसे, कभी देखता हूँ ज्यादातर लेडीज या बैचलर्स जो है वो कपड़ा जब धोते हैं, अब जब ड्राइंग के लिए डालने से पहले वो क्या करते हैं, मोचते समय छूट जाता है कपड़ा और उसको जो कट होता है उसको फोकट नहीं रहता है, वो बर्न्स होता है। स्कूल के जब स्पोर्ट्स रहता है, मैंने देखे स्पोर्ट्स में टग ऑफ वॉर रहता है, टीम ए और टीम बी दोनों खींचते हैं, टीम ए इतना खींचते हैं कि वो जीत जाते हैं, उसको प्राइज मिलता है, शील्ड, बड़ा शील्ड मिलता है, और बेचारे टीम बी के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उनको बर्न्स होता है। ओके, जब खींचता है तो फ्रिक्शन की वजह से बेचारों को प्राइज तो मिलता ही नहीं है, उनको क्या होता है, बर्न्स होता है। तो इस प्रकार के अलग अलग कॉजेस है जिसके से बर्न्स होता है। और सबसे खतरनाक कॉजेस जो है वो है फ्लेम्स, हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट लिक्विड्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। एक एक करके नेम किस तरह से इनको निपटना है। हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट लिक्विड्स अगर है तो उसको, उस गुण को पहला देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, थोड़े लोग बर्नर लगाते हैं, कुछ और क्रीम लाके लगाते हैं, पहला जीवन लगाते हैं और कुछ लगाते हैं, बहुत बार देखे। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहला अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो उस बर्न्स गुण का डिग्री क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। इज इट फर्स्ट डिग्री बर्न, इज इट सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होगी, सिंपल, फर्स्ट डिग्री बर्न में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आता है उस गर्म चीज से, उस वो भाग लाल हो जाता है, सिर्फ लाल होता है, थोड़ा हल्का सा दर्द रहता है। इस सभी लोगों को एक्सपीरियंस आया होगा। इट इज व्हाट इज फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, हमको सिर्फ क्या है, ठंडा पानी 10 मिनट के लिए उस भाग के ऊपर डालना है और कुछ नहीं करना, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, आइस लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत, सिर्फ अब क्या करना है, ठंडा पानी 10 मिनट उस पॉइंट के ऊपर डालना, बस। सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है, वहां पे वो भाग लाल हो जाता है और एक फोड़ा निकलता है, पानी में भरा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस आया होगा। ज्यादा करके एकदम गर्म चीज एकदम चटका लगता है और एक दिन या दूसरे दिन आप पता चलता है तो एकदम पानी जैसा, पानी में भरा हुआ एक फोड़ा बन जाता है। इसको क्या करना है, there are two schools of thought, there are two different thoughts in the minds of the surgeons। ये सर्जन की चीज है, सब डॉक्टर्स उनको मैनेज कर सकते हैं। जब भी एक ब्लिस्टर आ जाता है तो सबसे पहला हम उसको सिर्फ एक स्टेराइल नीडल देके, 26 नंबर की नीडल देके सबसे छोटी
सबसे कम साइज की 26 नंबर निडल लेके आप उसको वो फोड़ा जो है उसको तोड़ना है। उसके अंदर जो पानी है वो निकालना है। जैसे वो पानी निकलेगा जो ऊपर जो चमड़ी है उसको वैसे हम रख सकते हैं। इट इज अ नेचुरल ड्रेसिंग माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डू दैट, बट थोड़ा समय लगता है नई चमड़ी आने के लिए। या थोड़े सर्जन्स का कहना है कि वो जो फोड़ा है वो पहला फोड़ना है, उसमें से पानी निकलना है, और पानी निकालने के बाद जो चमड़ी है उसको पूरा निकाल के उसको ड्रेसिंग करना शुरू करना है। 5 या 7 दिन के बाद नई चमड़ी जल्दी आती है। तो अगर हम वो फोड़ा निकालते हैं, हम घर में भी सारी चीजें कर सकते हैं। फोड़ा जो है वो निकाल के पानी निकाल के चमड़ी निकाल के अच्छे से उसको मरम्मत भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बर्न्स सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर आप थर्ड डिग्री बर्न, यहाँ पे चमड़ी नहीं, चमड़ी के नीचे का जो भाग है, मांस जो है वो भी एकदम जल जाता है, एकदम काला पड़ता है। ऐसे केसेस को आपको ज्यादा हैंडल नहीं करना चाहिए तुरंत उसको, क्योंकि इंफेक्शन होने का चांसेस बहुत है। तो ऐसे थर्ड डिग्री बर्न्स को आपको तुरंत शिफ्ट करना। अगर आप फायर एक्सीडेंट्स की केस संबंध में आ जाते हैं, जैसे फ्लेम्स, जैसे बहुत बार हमने देखा है किचन के सेक्शन, किचन के अंदर गैस स्टोव या गैस सिलेंडर फट जाता है, और इतना फटता कि पूरा किचन आग से भर जाता है। या हमने देखा है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ऐसे फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई शॉप में, कोई वेयर हाउस के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा का पूरा वो रूम आग से भर जाता है। ऐसे समय में क्या करना, बहुत बार हमने देखे पेशेंट भाग के आएगा या कोई आपके पास व्यक्ति भाग के आएगा, रेडी पूरा आग है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? आपके पास मुझे पूरा आग लगा है, क्या करना मुझे, मतलब करो यार, तो क्या करोगे? रेडी रहना है। वेरी गुड। तो सबसे पहला चीज उस व्यक्ति को कहना कि आप स्टेडी हो जाओ, आप उसी जगह पर रुक जाओ, आप भागना दौड़ना नहीं है, क्योंकि जितना वो भागेगा दौड़ेगा क्या होने वाला, जो आग जो है और फैल जाती है, क्योंकि उसको और हवा लगती है। तो अगर आपको इस सिचुएशन नहीं आना है तो सबसे पहला चीज उस व्यक्ति को क्या कहना है, यू रिमेन योरसेल्फ कूल एंड काम, आई एम आल्सो कूल एंड काम, मैं भी एकदम शांत हूं, आप भी शांत हो। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, ऐसे पेशेंट को तुरंत उसका जो आग है वो बुझाना है। किस तरह से बुझाओगे? बहुत बार हम देखते हैं, हमने देखा है, पिक्चरों में देखा नहीं है, हमने खुद में ऐसे केस देखे जहाँ पे अरे मैं आ जाता हूँ, एकदम शोर भी रहता है, लोग तो मैं करता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर विक्टिम है डर के मारे, दिस इज ये नहीं, तो क्या करेंगे, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है आग बुझाने का। क्या तरीका है, सही तरीका मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। अगर ये विक्टिम है, अगर विक्टिम है, तुरंत एक झटके के अंदर हम आग बुझा सकते हैं। वो किस तरह से, हमेशा ध्यान में रखना, हमारे लिए एक चीज है जो आग बुझाने के लिए, वो है ब्लैंकेट या रग। कभी बेडशीट नहीं इस्तेमाल करना है, पतली बेडशीट कभी इस्तेमाल, रग, थिक रग और थिक ब्लैंकेट। क्या करना है, ये थिक रग और ब्लैंकेट आपके पास है तो ये तुरंत जाके उसको पानी में डुबा के उसको सोक करना, गीला करना, ताकि जल्दी उसको मदद करे और आग बुझाने में। गीला हुआ कपड़ा, गीला हुआ रग फ्रॉम टू एंड या फ्रॉम हेड एंड टू एंड, इस तरह से कैन आल्सो हेल्प मी। दो लोगों की जरूरत रहती है। जैसे हम सिर से यहाँ लेके जा रहे हैं, तभी मुझे क्या करना है, ऊपर से जितना हवा ये रग और ये शरीर के बीच में, बॉडी के बीच में जो हवा अटकी है उसको पूरा स्क्वीज करके निकालना। एक झटके में पूरा आग बुझ जाती है। और जैसे हम उसको कहते हैं लेटना है, एक ध्यान में रखना है, कैसे उसको बोलेंगे लेटने के लिए, जो भाग जल रहा है वो जमीन से ऊपर है, जो भाग जल रहा है कभी जमीन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, एक ध्यान में रखना। उसको लेटने के बाद क्या करना है, तुरंत एक रग ले लो, गीला कर दो, सोक कर दो, और फ्रॉम हेड एंड टू द टू एंड, अब तुरंत, और जैसे आप लेटेंगे सिर से पैर तक आप उसको ऐसे स्क्वीज करना है पूरा, इससे तुरंत आग बुझ जाए।
एक्सटिंग्विशिंग। देन जैसे आग बुझा दिया, एकदम इतनी जलन रहती है कि हमको उनको कूलिंग मेजर्स देना बहुत रहते हैं। कूलिंग मेजर्स कैसे देते हैं? ठंडे पानी, अभी अगर हाथ समझो, अगर हाथ जल गया तो क्या करोगे हम लोग? रेडी, क्या करोगे? हम क्या करोगे? अगर नल का पानी उसके ऊपर छोड़ेंगे, सिंपल। या एक बर्तन ले लो, ठंडा पानी डालो उसमें और हाथ डुबा के रखो। अगर पैर जल जाता है तो क्या करोगे? एक बकेट ले लो, बकेट एक भरा हुआ बकेट पानी से, उस बकेट में आपको पैर डुबा के रखना है 10 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए, ताकि जलन जो होती है वो कम हो। अभी डॉक्टर नीलेश ने कहा है जो चीज जलती है उसको पानी में डुबाना। अगर सिर जलता है तो क्या करोगे? बाल्टी में उसके सिर डुबा के रखोगे? बिल्कुल नहीं, डोंट डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर सिर जल जाता है, उसके मुंह जल जाता है तो क्या करना है आपको? सिंपल मेजर, मेडिकल स्टोर में बड़े साइज की गॉज पीसेस मिलते हैं, ये भी छोटा है, इससे भी बड़ा मिलता है। तो ये गॉज पीसेस जो है उसको 4 छेद करना, 2 आंख के लिए, 1 नाक के लिए और 1 मुंह के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका सिर जल चुका है तो ये गॉज पीस जो है वो पानी में डुबा के सोख करके 10 मिनट के लिए उसके चेहरे पर लगा कर, ताकि वो आंख से देख सके, नाक से सांस ले सके, उसे कुछ फील सके। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। सो इट इज वेरी सिंपल, डोंट ट्राई टू डीप दिस फेस हेड इन द bucket full of water, don't do that. Okay, this is the way what we do, we try to do all this cooling measures. अभी जैसे वो भाग, कोई भी भाग जल चुका है, वो भाग को तुरंत सूजन आती है, there is lot of swelling. Remember my dear friends, अगर स्वेलिंग आती है तो एक चीज करना है, जैसे भगवान के मंदिर में जाकर जो धागा लगा मानते हैं, या घड़ी रहती है, या ये रिंग रहती है, और कोई कुछ काड़ा रहता है, ये सब बहुत सारी चीजें लोग पहनते हैं, ये या बैंगल्स, लेडीज तो बैंगल्स पहनते हैं, ये सारी चीजें तुरंत निकालनी। अगर हम कोई भी थोड़ा भी अगर हम टाइम बर्बाद करते हैं, थोड़ा भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये सूजन इतनी आती है कि बाद में ये चीजें निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई। और सबसे प्रॉब्लम क्या होता है? ये कंस्ट्रक्शन बैंड हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, इतना टाइट होता है कि ब्लड सप्लाई उस अवयव को, उस भाग, शरीर के भाग को नहीं मिलता और तकलीफ में पड़ जाता है। तो क्या करना है? जैसे कूलिंग मेजर्स किया, तुरंत ये जो धागे जो है वो कट करके तुरंत निकालना है, घड़ी निकालना है, रिंग निकालना है, भगवान के नाम जो भी आप पहनते हो तुरंत निकालना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद रिलीविंग द स्वेलिंग, स्वेलिंग जो है, जो सूजन आती है, उसको कितना कैसा कम करना है। अगर समझो पैर जल चुका है तो पैर को उठा के हेड या बॉडी से थोड़ा रेस करना, ऐसे रखना। आप कुछ भी उसको सपोर्ट दे सकते हैं और ऐसे उसको सुधारना ताकि उसकी स्वेलिंग जो है कम। अगर हाथ जल जाता है तो हाथ को रेस करके रखना है, इस तरह से आपको इस सूजन है वो भी आपकी कम हो जाए। उसके बाद शॉक, अब पेशेंट क्या होता है, बहुत बार मैंने देखे जो पेशेंट को बर्न्स है और 25% से भी ज्यादा बर्न्स है, परसेंटेज के बारे में आपको मैं तुरंत बताने वाला हूं। 25% के भी ज्यादा बर्न्स है, उनको आईवी फ्लूइड्स की जरूरत रहती है, उनको सलाइन की जरूरत है। कोई पेशेंट शॉक में जा सकता है क्योंकि बहुत बर्न्स में बहुत नमक, शक्कर और पानी चला जाता है शरीर से। तो उनको क्या करना है, अगर रिलीफ शॉक को अगर नहीं करना है, कम करना है, या शॉक में ना जाने के लिए आपको ओआरएस, आपने सुना होगा, डायरिया जब जुलाब होता है, जब संडास डायरिया लगती है, लूज मोशन होते हैं, हम ओआरएस पीते हैं। ये ओआरएस हम इसको पिलाते रह सकते हैं, 10 मिनट के बाद एक बोतल चम्मच पिलाते हैं। अगर 25% से भी अगर ज्यादा बर्न्स है तो उसको तुरंत शिफ्ट करना है। अभी ये परसेंटेज कैसा होता है? सिंपल, ये हमारा जो शरीर है उसको अलग अलग एरियाज में बांटा है। अगर हमारा सिर जल जाता है सिर, तो इसको कहते हैं 9%। अगर छाती जल जाती है तो ये इसको भी 9% है। एब्डोमेन, इसको पेट बोलते हैं, एब्डोमेन जो भाग है उसको 9%। पैर, दोनों पैर 9%, 9%। ऊपर का भाग, नीस के ऊपर का जो भाग है उसको 9%, नीस के नीचे का जो भाग है उसको 9%। हाथ को 9%, दोनों हाथ को 9%। हाथ जो है पाम, उसको 1% और प्राइवेट पार्ट है उसको 1%। ऐसा करके पूरा 100% होता है। समझो अगर ये व्यक्ति का अगर छाती, पेट और थोड़ा हाथ जल चुका तो कितना परसेंटेज हो गया? 9%, 9% एंड 9%, 27%।
or this is the way. So it is a rule of 9, except for the genitals and for the sperms is 1%. Rest all 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Okay. So there is a rule of 9. इससे हमको पता चलता है अगर 25% बल्स कैलकुलेट करके हमको पता चले 25% तो ज्यादा है, उसको शिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट, अभी ये हुआ वर्ड्स. अभी बाइट्स, एक खतरनाक. बाइट्स में क्या होता है, हमने 3 ऐसे इंसेक्ट्स देखे हैं जो बाइट्स या जानवर देखे हैं जो बाइट करने से, काटने से हमारे शरीर को नुकसान होता है. सबसे खतरनाक जो बाइट है वो स्नेक बाइट है. आपको भी डर है स्नेक बाइट का, राइट? तो स्नेक बाइट यानी सांप जब काटता है, तो सांप जब काटता है तब पेशेंट सीरियस भी हो सकता है या कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता. ये कब होता है? अगर स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस स्नेक. जब सांप काटता है, कोई डॉक्टर इंग्लिश ने कहा पॉइजनस स्नेक है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, नॉन पॉइजनस है तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं होता है. तो इसका मतलब ये नहीं जब सांप काटने के बाद आप सांप के पीछे भागो देखने के लिए वो पॉइजनस था या नॉन पॉइजनस था. किस तरह से पता लगेगा हमें कि स्नेक पॉइजनस था या नॉन पॉइजनस था? जस्ट सी माय दिस डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर देखिए, कैन यू सी दिस teeth mark? There are 2 sets of teeth mark, 1 set and 2 set. Can you see the 2 set of teeth mark? This 2 set of teeth mark will show you, only teeth mark will show you, will confirm that it is non-poisonous snake. जब दूसरी स्लाइड देखो, बाजू में जो स्लाइड है, बाजू की जो स्लाइड है उसमें क्या है? टीथ मार्क के साथ फैंग मार्क्स है, 2 धब्बे हैं जो डंक के धब्बे हैं. डंक यानी फैंग मार्क्स. दिस इज अ साइन, दिस इज द वे वी कैन कंफर्म दैट इट वाज अ पॉइजनस स्नेक बाइट. रिमेंबर दिस. और स्नेक बाइट अगर पॉइजनस है तो और डेंजर रहता है. तो इसको हम किस तरह से मैनेज करोगे? रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर जनरल मेथड्स. रिमेंबर, जैसे सांप काटता है, जो जहर जो उस जगह पे जाता है जहां पे काटा है, वो तुरंत खून या लिम्फेटिक सिस्टम से हमारे शरीर में फैलता है. लिम्फेटिक सिस्टम से फैलता है ज्यादा. तो ये शरीर हार्ट की तरफ जा सकता है, ब्रेन की तरफ जा सकता है, पूरे मसल्स के अंदर जा सकता है, तो पूरे शरीर को नुकसान कर सकता है. तो जनरल मेजर्स में क्या करना है? और एक कब होता है? जब वही आदमी जिसको सांप ने काटा है वो अगर ज्यादा हाथ पैर हिलाने लगा या दौड़ने लगा डर के मारे या चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा मुझे, जितना वो हाथ पैर हिलाएगा उतना ये जहर जल्दी शरीर के अंदर फैलेगा. तो जैसे मैंने कहा है, फायर एक्सीडेंट में, बर्न्स में शांत रहना है, कूल रहना है, उसी जगह पर रहना है. वैसे इस व्यक्ति को भी आपको क्या कहना है? यू हैव टू रिमेन कूल एंड काम, रिमेन एट द सेम प्लेस. उसी जगह पे खड़ा रहो. दैट इज फर्स्ट थिंग. डोंट रन अराउंड एनी. उतना आपको ही प्रॉब्लम है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, आपको प्रॉब्लम होता है. दूसरा, उसको लेटाना. सी टू इट दैट ही लाइज डाउन. और जो शरीर के भाग को काटा है, समझो हाथ को काटा है, ये हाथ जो है अगर काटा है तो ये हाथ, ये जो भाग काटा है वो हार्ट के लेवल से नीचे होना चाहिए ताकि उसको दिक्कत होना चाहिए जहर को ऊपर आने. अगर ये हाथ ऊपर रखते हैं तो जहर जल्दी हार्ट की तरफ. पैर अगर काटा है, पैर को, लेफ्ट पैर को काटा है तो पैर का क्या करना है? नीचे रखना ताकि जहर जल्दी फैल न सके. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा, फिर भी वो मना कर रहा है, फिर भी वो चिल्ला रहा है, पैर हिला रहा है, तो क्या करना है? हम जैसे फुट रूलर इंस्टेड ऑफ लेगा, आप एक पट्टी फुट रूलर लेके यहाँ पे लगा के उसको फिक्स कर देते हैं. यस, थैंक यू. दिस इज अ फुट रूलर. यू कैन जस्ट, जहाँ पे जॉइंट मूवमेंट कर रहा है व्यक्ति, तो उसी जॉइंट मूवमेंट पे आपको उसको बांध के रखना है ताकि वो पैर हिला ना सके, जॉइंट मूवमेंट ना कर सके. इससे क्या होता है? जहर जल्दी फैलता है. इसको हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ द विक्टिम. ड्रेसिंग आप कर सकते हैं. अगर छोटा मामूली वहां पे जो काटा है, आपको सिर्फ मामूली से हल्का सा ड्रेसिंग करना है. ओके. अभी आप कहोगे बहुत बार हमने सुना है, हम कुछ बांधते हैं, या बहुत बार सुना हम कुछ उसको काट देके उसको चूसते हैं वो जहर को. ये कब करना है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
whenever there is a snake bite, the symptoms will start. उसके जो लक्षण हैं, आप जहर जहर जब जाता है हमारे शरीर के अंदर, उसके लक्षण तुरंत आते हैं. Within few seconds, we start getting symptoms. But remember, to develop the complications, snake bite का जो complications है, वो 4 या 6 घंटे के बाद ही शुरू होता है. यानी आपको 4 और 6 घंटे का समय रहता है आपको उस व्यक्ति को शिफ्ट करना. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फिर भी अगर समझो आपको लगा कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो एकदम ज्यादा आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं. माइल्ड सिम्टम्स क्या होता है? माइल्ड स्वेलिंग, जहाँ पे काटा है वहां पे सूजन आती है. माइल्ड पेन, जहाँ पे काटा है वहां पे थोड़ा दर्द होता है. जो भाग काटा है वो नीला पड़ जाता है. जो भाग को काटा है वहां पे एकदम जैसे गुदगुदी होती है, टिनिंग होती है, उस तरह का टिनिंग सेंसेशन आती है. इस काटने के बाद उस व्यक्ति को गिडीनेस आ जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशंस हो जाती है, दिखने में दिक्कत होने लगती है, सांस लेना जरा फास्ट लेना शुरू करता है, जरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जैसा होता है, और पल्स जो है वो एकदम रैपिड हो जाता है, फास्ट होता है. ये अगर लक्षण है, वी आर वी कॉल दिस सिम्टम्स एज माइल्ड सिम्टम्स माय डियर फ्रेंड्स. अगेन swelling, pain, tingling, bluish discoloration, shortness of the breath, then there is pulse becomes rapid, there is giddiness, there is vomiting, and all these symptoms. अगर ये symptoms अगर जल्दी आने लगते हैं तो आपको अभी हीरो बनना है, आपको आपकी हीरोगिरी दिखाना है. हीरोगिरी क्या होती है? ऐसे कंडीशन में हीरोगिरी यानी आपको एक बैंड बांधना है, जैसे वो जहर जहाँ पे काटा है वो जहर आगे न बढ़ने के लिए हमको बैंड. कब बांधोगे? The moment you see this mild symptoms bandage. Before that, if there are no symptoms, no problem. You try to shift the patient as a response. What you are going to tie, where you are going to tie, क्या बांधोगे, कहाँ पर बांधना है, वो बहुत जरूरी है. ओके, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. बहुत बार हमने देखे हैं नायलॉन का धागा रोप लेके आते हैं, बांधते हैं, रबर बैंड लाके लगाते हैं, कोई भी जो सुतली बोलते हैं सुतली, वो सुतली बांधते हैं और भी टाइट करते हैं. दिस इज कॉल्ड टूर्निकेट. टूर्निकेट शुड बी, रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, टूर्निकेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपके पास हर एक के पास ये हैंडकरचिप तो रहता ही है. ऐसे समय में हैंडकरचिप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से. ये हैंडकरचिप जो है उसका हम टूर्निकेट बनाते हैं. टूर्निकेट यानी अ बैंड व्हिच इज अ कंस्ट्रिक्शन बैंड व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम गोइंग फर्दर. वे कैसे बांधते हैं? ये टूर्निकेट जो है उसकी साइज 3/4 से लेके 1.25 या 1.5 इंच होनी चाहिए. देखिए ऐसी, दिस इज द width of a tourniquet and it is not the rubber band or a nylon rope or a सुतली. ओके, जैसे आपने ये टूर्निकेट बनाया, कहाँ पे बांधना है वो बहुत जरूरी है. एनीबॉडी रेडी? यू नो कहाँ पे बांधते हैं हम लोग? तो जहाँ पे सांप काटता है एग्जैक्टली 3 इंच उसके ऊपर बांधना है. समझो सांप ने यहाँ पे काटा है, तो कहाँ बांधोगे? 1 2 3. अभी डॉक्टर नीलेश ने कहा था 3 इंच फुट पट्टी लेके आ जाओ, बाद में मेजर करूंगा. बिल्कुल टाइम बर्बाद मत कीजिए माय डियर फ्रेंड्स. तो जहां पे काटा है रफली 1 2 3 यहां पे बांधो. जब आप बांधोगे, नॉट जो आप बांधने वाला है वो इतना ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए. कैसे पता चलेगा हमको ये टाइट बांधा है कि लूज बांधा है? जैसे हम बांधोगे एक उंगली उसके अंदर जाना चाहिए. अगर वो जा रही है तो समझना है हमने बराबर से बांधा. ज्यादा टाइट भी बांधने से कोई मतलब नहीं, वहीं पे जहर रुकेगा और गैंग्रीन हो जाएगा. जहाँ पे हम टाइट बांधते हैं वो भी सही नहीं है, जहाँ लूज बांधा तो जहर आगे बढ़ सकता है. तो हल्का सा, ताकि एक उंगली जाना चाहिए. देखिए अगर समझे टाइट बांधना है तो तुरंत निकालना. अरे ने कहा था पूरा लूज बांधना, थोड़ा ऐसा मीडियम बांधना है, तो जल्दी पूरा निकालने की जरूरत है. पूरा निकाल तो जहर आगे बढ़ जाए. तो हल्का सा उसको थोड़ा मूवमेंट करना बस. और हाँ, डॉक्टर नीलेश ने कहा था जहां पे काटा है वहां पे बांधना है 3 इंच. समझो रेड्डी, हमारे जो रेड्डी ब्रदर है, वो इतने उसको बहुत ट्रैकिंग पसंद है और ट्रैकिंग के लिए जाता है, राइट? तो जब ट्रैकिंग के लिए जाता है कभी दूध सागर जाता है, कभी हाँ वहाँ पे भी जाता है, जंगल में जाता है, वहां पे बहुत झाड़ है. वहां पे जब वो चढ़ते हैं, समझो एक सांप आके उसको, तो क्या करोगे? डॉक्टर नीलेश ने कहा था
3 इंच अबव, 1 2 3 करके यहाँ पे भी बांधना है माय डियर फ्रेंड्स। और सांप काटने से नहीं मरेगा, मेरे स्ट्रैंगुलेशन से मरेगा। ओके, सो नेवर डू दिस मिस्टेक। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर यू आर नॉट सपोज्ड टू अप्लाई एन टूर्निकेट। जैसे जॉइंट, अगर यहाँ पे काटा है 1 2 3 इंच है, तो अगर जॉइंट आ रहा है तो वहां पे काटने की जरूरत, टूर्निकेट बांधने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे काटा है, थाइस के ऊपर काटा है, यहाँ पे कोई काटा है थाइस के ऊपर 1 2 3, अगर ये हिप बोन आ रहा है, हिप जॉइंट आ रहा है, तो यहाँ बांधने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्लाई टूर्निकेट। ये हुआ हिरोगिरी only if you come across mild symptoms matter. If there are severe symptoms, severe symptoms कौन थे? Severe pain, जैसे काटी में तुरंत दर्द शुरू होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तुरंत स्वेलिंग आ जाती है, वो जहाँ पे काटा है वो एकदम सुन्न होता है, एकदम नमनेस आ जाती है, सेंसेशन चले जाते हैं, या ट्विचिंग, हाथ पे जो मसल है वो एकदम हिलने लगता है, ट्विचिंग हो जाता है, सांस पूरी रुक जाती है, नो ब्रीदिंग, नो रेस्पिरेशन। बात करते समय इसे अल्कोहल ज्यादा पीने से जब बात करते हैं फ्लर्ड स्पीच, इस तरह का स्पीच होती है इसकी। ओके, तो फिट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, अनकॉन्शियस होता है पेशेंट। देन ये सारे जब ये सिम्टम्स जो आते हैं तो उसको हम कहते हैं सीवियर सिम्टम्स। एंड वंस यू गेट सीवियर सिम्टम्स, आप सिर्फ शाहरुख खान नहीं, आपको सलमान खान बनना है। यू हैव टू डू मोर हीरोगिरी। व्हाट इज दिस मोर ज्यादा हीरोगिरी? सिंपल, you have to take a surgical blade. I have not got a surgical blade, but if you have a surgical blade, you have to give a cut. समझो, here is my volunteer and good friend. अगर समझो, do you have a pen? समझो अगर सांप ने, और मैंने कहा है सांप पॉइजनस सांप कैसे पता चलता है? दम, दांत तो रहते हैं ऐसे, इस तरह से समझो सांप ने यहाँ पे काटा है, तो आप सर्जिकल ब्लेड लेके एक छोटा सा कट दोगे। कट कैसे दोगे? दोनों जो डंग के जो धब्बे हैं उसके बीच में आप कट दोगे। ओके, जब बीच में कट दोगे, सिर्फ एक हल्का सा कट, 2 सेंटीमीटर का कट, ज्यादा नहीं। काटते हैं हम, देखा है बहुत बार, देखते कट करते समय हाथ काटता है डर में, तो ऐसा कैसे डिजाइन हो जाएगा, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? आराम से रिमेन योरसेल्फ कूल एंड काम, टू टेक अ सर्जिकल ब्लेड एंड गिव अ स्मॉल 2 सेंटीमीटर। ओके, जैसे किया। और एक चीज है, अगर समझिए यहाँ पे कैसा है, सांप में यहाँ पे काटा, अभी सांप अगर इस तरह से काटता है, यहाँ पे काटता है, या यहाँ पे समझिए यहाँ पे काटा है ऐसे, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे टिप मार्क आने वाले हैं, यहाँ पे 2 धब्बे आए ऐसे। अगर यहाँ पे अगर धब्बा है तो आप कैसे कट करोगे? सर्जिकल ब्लेड लोगे और क्या करोगे? अब मैंने कहा दो डंग जो के धब्बे हैं उसके बीच में कट करना है। रिमेंबर, नेवर कट दिस वे, नेवर कट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज़ व्हाट यू आर गोइंग टू कट, आप क्या करोगे? आप जो नसें जो जाते हैं उसको कट करोगे। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से वर्टिकल कट देना है, नॉट हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? So again, every time when you cut, give a cut on your limb, whether it's forearm, forearm, you have to give a cut which is parallel to the limb. कभी vertical, horizontal नहीं काटना। horizontal अगर कट किया तो क्या होने वाला है? Nerves या blood vessels, artery, vein जो है वो कट करोगे और उसको तकलीफ में डालोगे। Do you remember this? कब करोगे ये सारी हीरोगिरी? The moment you see severe symptoms. जैसे एक कट किया तो खून बहने लगेगा, वहां पे मैक्सिमम 2 फैंग मार्क जो है वहां पे मैक्सिमम जहर का लोड रहता है, तो यहाँ से जो खून निकलेगा उसमें मैक्सिमम जहर रहता है। तो इसको किस तरह से निकालोगे? अगर आप के पास हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स में इस तरह का एस्पिरेटर होना चाहिए, 20-30 रुपीज में मिल जाता है मेडिकल स्टोर में, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज होनी चाहिए। तो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं आपको हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अगर आप कैरी करते हो तो इस तरह का एस्पिरेटर रहना बहुत जरूरी है। ये एस्पिरेटर लेके जहां पे आपने कट किया, जो खून आ रहा है उसको पूरा निकाल के 10 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए आप निकालो। अगर आपके पास नहीं है तो क्या है, आपको एकदम अजय देवगन बनना है। इसमें क्या करना है? मुंह लगा के जहां पे आपने कट किया मुंह से खून चूसना है, सिर्फ चूसना है, पीना नहीं है। ओके, सो व्हेन यू ट्राई टू होल्ड दैट पार्ट, try to squeeze maximum blood but spit out. आपको थूकना है, आपको अंदर नहीं लेना है। एक
इस तरह से सीवियर सिम्टम्स के लिए डिग्लूगिरी आप कर सकते हैं आराम से, अगर सिम्टम ज्यादा बढ़ने लगे और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो। थैंक यू। तो दिस इज द वे वी हैंडल स्टिग्मा। नेक्स्ट और एक इंसेक्ट हमने देखा है वो स्कॉर्पियन बाइट। कभी देखा आपने? बिच्छू दो प्रकार के रहते हैं इंडिया में, ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का। ज्यादातर गोवा में जो हम देखते हैं वो ब्राउन कलर का है, कभी कभार हमने देखे हैं गांवों में ब्लैक कलर का। ब्राउन कलर का जो बिच्छू है इज अ नॉन पॉइजनस, मोस्ट नॉन पॉइजनस स्कॉर्पियन। अगर वो काटता है तो सिर्फ वहां पे जलन होती है, सूजन आ जाती है, अनबेरेबल सूजन, वो हम आराम से नमक लगा ओके। या अगर ब्लैक कलर का स्कॉर्पियन बाइट ने काटा है तो इट इज अ पॉइजनस। अभी डॉक्टर नीलेश ने कहा पॉइजनस थे तो ढूंढो जाके, वो बिच्छू काट के चला जाएगा, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए उसको ढूंढने में। ओके, तो एक बार काट लिया, अगर काटने के बाद अगर आपको उल्टियां जैसा महसूस होने लगती है, सर दर्द करता है, चक्कर आने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ते हैं और आप कोलैप्स होने लगते हैं, तो समझना है ये स्कॉर्पियन बाइट जो था वो जहरीला था। और ऐसे पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी स्कॉर्पियन वेनम इंजेक्शन मिलते हैं, जैसे एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, एंटी स्कॉर्पियन वेनम भी इंजेक्शन मिलते हैं, वहां पे आपको रेफर करना। सिर्फ आपको यही करना है, बस मामूली से हल्का सा ड्रेसिंग करके उसको स्टॉप करना। तीसरा जो हमने किया है वो हनी बी बाइट, मधुमक्खी। कभी देखा? आपको सब बहुत लोगों का एक्सपीरियंस आया होगा, हनी बी बाइट डेंजरस है। एक बार चुभने से इतना दर्द होता है, सह नहीं सकते दर्द आपको। और कभी कभार ऐसा एक ही नहीं 10-15 के आपको, आप कभी जंगल में जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तब 10-15 के आके आपको अटैक कर सकते हैं। रिमेंबर, जैसे आपको मधुमक्खी काटती है वो काट के चली जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चली जाती है, और क्या होता है जहाँ पे काटा वहां पे सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, बहुत दर्द। तो आपको क्या करना है? सिंपल, अगर आपके पास नमक है तो आप नमक उसके ऊपर डालो, आपका दर्द कम होने वाला है, सूजन कम नहीं होती। अगर सूजन को कम करना है तो व्हाट यू हैव टू सपोज टू कीप इन योर फर्स्ट एड बॉक्स इज दिस टू थिंग्स, ग्लिसरीन एंड मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर, एप्सम सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। अब ये दोनों चीजें ऐसे हैं, दे हैव गॉट अ हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे इसका मिश्रण बनता है, कैसे बनता है? 2:1। अगर 4 चम्मच हम ग्लिसरीन लेते हैं तो 2 चम्मच ये मैक्सल पाउडर उसमें डालना है, उसका मिश्रण बनाना है, अच्छी तरह से घोल के उसका सॉल्यूशन बनाना है। ऐसे गॉस पीस जो है उसको अंदर सोक करके जहां पे काटा है उसके ऊपर डालना है। 15 मिनट के अंदर या आधा घंटे के अंदर इस सूजन भी चली जाती है, और ये आपके हमेशा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। कभी कभार हमने देखा है ये हनीबी भाई आके चिपक जाते हैं, काटते हैं, इतने काटते कि वो छोड़ते नहीं आपको, उनको आप पसंद होते हो, इतने पसंद लगते हैं कि छोड़ते नहीं आपको, ऐसा काटते। तो भी क्या करना है? हमने बहुत बार देखे, थोड़े लोग मारने की कोशिश करते हैं, वो निकलते नहीं, उसका दंत और अंदर चला जाएगा। जितना आप उसको कोशिश करोगे निकालने के लिए, तो हमेशा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में इस तरह का प्लेन फोर्सेप्स रहना बहुत जरूरी है। प्लेन फोर्सेप्स से क्या होता है? समझो इसने काटा है, तो हम लोग उसको पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। सी माय मेथड, you are supposed to hold a honey bee, don't pull the honey bee, the more you will pull the honey bee, जितना आप उसको खींचोगे दंत और अंदर चलेगा। उसको पकड़ के साइड मूवमेंट्स करना, पकड़ो 10 है, फटाफट 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप पूरे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। और जो सूजन आती है, दर्द होता है तो नमक लगाओ, नॉर्मल सॉल्ट। अगर सूजन है तो ग्लिसरीन मैक्सल ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी, बहुत उसको आराम मिलता है। Then we come on to the other emergencies, animal bites, कुत्ते। रास्ते में जो कुत्ते, डॉग बाइट्स तो बहुत कॉमन है, और रेबिस की हमको डर है कि उसको, अगर रेबिड है तो हमको भी रेबिस हो। डॉग बाइट के लिए वो कौन से क्लास है? समझो अगर कुत्ते से तो आपको चाटा है तो इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। समझो एक कुत्ते ने सिर्फ उनको नाखून लगाया, और उस नाखून लगाने के बाद जो घाव होता है उसको अगर चाटता है या सलाइवा लगता है तो आपको इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। या पूरा दांत अंदर चले जाते हैं तो इंजेक्शन लेना जरूरी है। पूरा काट के आपका मांस ही निकाल देता है तो इंजेक्शन लेना जरूरी है। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। उसके लिए वैक्सीन इंजेक्शन जो है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त मिलते हैं, आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको रेफर करना है ऐसे कुत्ते, अगर आपके किसी घर में कोई किसी को इस तरह का डॉग बाइट हो जाता है। अभी
Next would be bone injury. I think we have time, right? Another half an hour. So bone injury. Now this will I can finish it very fast. Bone injury, any fractures. टेंशन मत लो माय डियर फ्रेंड्स, अगर फ्रैक्चर है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बात, ज्यादातर फ्रैक्चर कब होता है? जब आप फिसल जाते हैं, जब आप चलते समय आपका एंकल ट्विस्ट होता है, या आप गिरने के बाद हाथ जमीन के ऊपर लगाते समय हाथ टूट जाता है, कहीं पे भी आपकी हड्डी टूट जाती है, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। किस तरह से पता चले कि ये फ्रैक्चर है कि सिर्फ मामूली सी चोट है, जिसको हम स्प्रेन कहते हैं? स्प्रेन नहीं, जो मांस है, जो टेंडन्स है, जो मांस जो हमारे हड्डी के अंदर जो चले जाते हैं, वो टेंडन्स है, वो टेंडन्स या लिगामेंट्स जो है, जो जॉइंट को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स है, उसको सिर्फ स्प्रेन हुआ है, वो टूटे हैं, ये फ्रैक्चर है। ये बहुत दो चीजें हैं जिसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तुरंत क्या करते हैं, जैसे हम गिरने के बाद अगर हमको पैर को सूजन आती है, पैर दर्द करने लगता है, या हाथ दर्द, जो भी भाग वो फ्रैक्चर या बहुत लगे तो सूजन आती है, हम वो भाग हिला नहीं सकते, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, स्वेलिंग इज देयर, पेन इज देयर। स्प्रेन के अंदर में भी पेन है, स्वेलिंग है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। फ्रैक्चर के अंदर में भी दर्द होता है, सूजन रहता है और रिस्ट्रिक्ट। तो किस तरह से पता चले ये स्प्रेन है या फ्रैक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी कैन डू इज, जैसे जो भाग को हमको शक है कि वो फ्रैक्चर है, वो भाग अगर हम जमीन के ऊपर टच करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं और हम चल नहीं पाते, तुरंत एकदम शूटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन अगर आ जाता है, तो समझना है कि पॉसिबल फ्रैक्चर का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्प्रेन है, अगर स्प्रेन है तो जमीन के ऊपर रखने के बाद हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं, फिर भी ये कंफर्म नहीं रहेगा। और एक चीज है, और एक अच्छा सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, आपको तुरंत एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादा करके डर के मन तुरंत एक्सरे करते हैं, हड्डी के डॉक्टर को मिलते हैं, बोलते डॉक्टर साहब हमको तुरंत एक्सरे करना, हमको डाउट क्लियर करना। ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइस मेथड। ये राइस चावल नहीं है जो हम खाते हैं, ओके? राइस यानी आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। 2 या 4 दिन आपको बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हमको आई यानी आइस पैक्स, जैसे आइस का या ठंडा कोल्ड पानी लेके जहां पे सूजन आई है उसको 15 मिनट के लिए आइस कॉम्प्रेसेस लगाना बहुत जरूरी है। आइस। थर्ड, कॉम्प्रेसेस ऑफ नॉट ऑफ आइस, बट आप चाहिए तो ऐसे गॉज रोल डाल के उसको टाइट बांध के रख सकते हैं, सपोर्ट, ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए। ओके, सो फर्स्ट इज रेस्ट, सेकंड इज आइस पैक्स फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स गिव अ ब्रेक, और फिर 15 मिनट्स आइस लगा दो, 15 मिनट ब्रेक दो। ये करते रहो अगले 2 या 3 दिन या 4 दिन। उसके बाद उसको क्या करना है, कॉम्प्रेसिव लगाना, पूरा उसको बांध के रखना, सपोर्ट देना, क्योंकि क्या है, हमको आदत है थोड़ा हाथ पानी हिलाने, बैठे बैठे हाथ पानी हिलाते रहते, तो ऐसा क्या तो क्या होता है, थोड़ा रेस्ट नहीं मिलता, तो कॉम्प्रेस करके उसको रखना। और लास्ट ई यानी एलिवेशन, जो जहां पे भी सूजन आई है वो हाथ को थोड़ा एलिवेट करके रखना। अगर हम लेट रहे तो 2 या 3 या 4 तकिया डाल के हाथ, जब पैर अगर सूजन है, डाउन है, पैर पूरा रेस्ट करके 2 या 3 दिन जब हम लेटते हैं बेड के ऊपर, तब तकिया लगा के उसके ऊपर पैर डाल के थोड़ा सपोर्ट देना, ताकि उसको एलिवेट कर सके। तो एलिवेशन के साथ इस सूजन होती रहती है, कंप्रेशन के साथ मूवमेंट नहीं होता, आइस के साथ सूजन होती रहती है, रेस्ट के साथ सूजन भी उतरती है, दर्द भी। 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक छोड़ देना, पता चलेगा पूरा दर्द चला गया है, सूजन चली गई है, मूवमेंट सब अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको स्प्रेन था और फ्रैक्चर। डिड यू रिमेंबर? राइस, रेस्ट, आइस पैक्स, compression to support the joint mobility, and third, elevation. This is the way of diagnose fractures. Then asthma. बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स हमने गोवा में तो बहुत सारे हैं अस्थमा के पेशेंट्स। तो अस्थमा के पेशेंट को क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जो ब्रेथलेस आ जाता है, ही करके सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में नहीं, सांस लेने में नहीं, सांस छोड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। These are called as typical asthmatic patients. ज्यादा करके मॉनसून विंटर में ज्यादा रहते हैं। ऐसे पेशेंट कोई भी आपके संबंध में आ जाता है तो क्या करना है, अस्थमेटिक पेशेंट को तो रिलीफ देना है, उसको आराम देना है। तो पोजीशन ऑफ द विक्टिम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे लेटाओगे, उसको लेटाना नहीं चाहिए, लेटा के रखा तो उसको सांस लेने में और दिक्कत होती है, उसको बिठा के उसको प्रॉपर पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन। जैसे लग्जरी की बस, पुश बैक सीट वाली बसें जो रहते हैं,
इस तरह का पोजीशन अस्थमैटिक के लिए बहुत बढ़िया रहता है। लीनिंग फॉरवर्ड बेड है, लाइंग डाउन भी बेड है। तो कौन सा पोजीशन देना अस्थमैटिक पेशेंट्स को? ये प्रोन पोजीशन। ये देने के बाद उसको अगर उसके साथ देने की नलियां जो चोक हुई है वो खोलने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में पानी डालो, उसमें नमक डालो, उसको बॉईल करके नमक का जो पानी है, सॉल्ट वाटर स्टीम इनहेलेशन, उसको आप बर्तन डाल के उसके ऊपर जो हम नॉर्मल सभी लोग करते हैं घर में, चादर डाल के उसको स्टीम इनहेलेशन देना पड़ेगा। एक 15 मिनट के बाद हम स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आराम उस व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद ब्रूज, ब्रूज आपने सुना है ब्रूज? व्हाट इज ब्रूज? ब्रूज इज नथिंग बट इंजरी विदाउट अ कट। जैसे हम हिंदी पिक्चर में देखा अमिताभ बच्चन अमजद खान को मारता है, विलन को, अजय देवगन उसी विलन को मारता है। मारने के बाद क्या होता है, यहाँ पर काला पड़ जाता है। क्या हम कभी घर में क्या होता है, दरवाजा बंद करते समय हम हमारा हाथ निकालना भूल जाते हैं और हमारा दरवाजे के अंदर ये उंगलियां अटक जाती है और तुरंत देखा तो एकदम नीलापन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रूज। ब्रूज इज नथिंग बट इंजरी जहाँ पे चमड़ी जो है, स्किन जो है वो इंटैक्ट है, स्किन के नीचे जो आर्टरीज है, कैपिलरीज जो छोटे छोटे नसें जो है वो ब्लीड होते हैं। इस कॉल्ड एज ब्रूज। अब अगर ब्रूज हो जाता है तो आप क्या करोगे? सिंपल, ब्रूज के लिए पहले 24 घंटा आपको आइस कोल्ड कॉम्प्रेसेस लेना बहुत जरूरी है। ठंडे पानी से, आइस कोल्ड से उसको कॉम्प्रेस, ताकि ज्यादा ब्लीड जो हो रहे हैं वो बंद हो, तुरंत बंद होता है, आगे ब्लीडिंग नहीं होती 24 घंटा। अगले दिन से आप हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट आप उसको कॉम्प्रेसेस दे सकते हैं। लेट मी कम अप विद चोकिंग। चोकिंग कभी सुना है? बहुत बार हम देखते हैं। चोकिंग कब होती है? जब कोई अच्छी चीज घर में बनाई है और कम क्वांटिटी में, 5 फैमिली मेंबर है, आपको लग रहा है गुलाब जामुन है, 5 लोग हैं, 8 गुलाब जामुन है, फिर क्या करेंगे? एक एक ने ले लिया, अभी 3 बचे, सेकंड राउंड है, क्या करोगे? मैं जल्दी जल्दी खाता, मैं जल्दी जल्दी खाते हैं। देखा ना हमने, या पार्टी के लिए जाते हैं, कभी आप बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं, कोई दावत के लिए बुलाता है, तो वहां पे क्या होता है, मैंने देखा है बहुत बार, प्लेट पूरा भरा हुआ है, पेट भर के खाते और जल्दी जल्दी स्वीट डिश की तरफ जाते हैं और इतने जल्दी खाते हैं जैसा कोई ये चीजें लेके जाने वाले। और क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, वो जो चीज, जो खाने वाली चीज है, वो हमारे फूड पाइप के अंदर जाने से गलती से वेन पाइप पे चली जाती है। सांस लेने की नली और खाने की नली बहुत बगल में रहती है, ऐसे रहती है। तो जो चीज हम खाते हैं फूड पाइप में जाना चाहिए, वो कहाँ जाता है? वेन पाइप में जाता है। सांस लेने की जो नली है उसमें चला जाता है और हम एकदम चोक, यानी फूड पार्टिकल हैज गॉन इनटू द वेन पाइप। ओके, इस ऐसे समय में उसको कैसे आराम करोगे? देखा मैंने ठीक है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट पे ठीक है, कभी कभी तो इतना चोक होता है पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो किस तरह से उसको रिलीव करोगे? आई विल डेमोंस्ट्रेट टू यू। यस, सी दिस इज माय वॉलंटियर। ओके, अगर चोकिंग है, you just stand. अगर चोकिंग है, there are 3 methods. The crude method which is there is उसकी जीभ जो है उसको पकड़ के खींचना है। मेरे को चिल्लाएगा, क्या करेगा? जीभ उसकी खींचते हैं तो चोकिंग बंद। या बेस्ट पार्ट, जीभ खींचते हैं और चम्मच उसकी छोटी जो जीभ है, उसको इवुला जिसको बोलते हैं, उसको हम टच करते हैं। टच करने के बाद करता है पूरा वो फूड पार्टिकल बाहर निकलता है। या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैक ब्लो। दो जो हमारे शोल्डर गर्गल्स जो है, ये हड्डियां जो है, इसके बीच में आपको जोर से जब ऐसे जोर से मारते हैं तब क्या होता है, जो फूड पार्टिकल जो हमारे विंड पाइप में है वो आ जाता है। और सबसे बढ़िया है, इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक थ्रस्ट। ये बैक ब्लो है। और एपिगैस्ट्रिक थ्रस्ट क्या होता है? उसके पीछे रहो, जो उसकी जो रिब्स जो है, रिब्स के नीचे पेट के ऊपर हाथ रखना है और the moment you do this movement, abdominal pressure will go up, diaphragm muscle will push the lungs and जो फूड पार्टिकल जो ट्रकिया में चला गया वो तुरंत निकलता है। इसको कहते हैं हम एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक यानी ये भाग, नाभि और ऊपर वाला जो भाग है ये भाग। देखिए कहां पे आपको प्रेस करना है? रिब्स जहां पे खत्म होती है, यहाँ पे जो गड्ढा है जहाँ पे रिब खत्म होती है, और यहाँ पे जो नाभि है
नाभि के बीच में का जब भाग है इसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। इस भाग को पकड़ के इस तरह से उसको प्रेशर, इससे तुरंत फूड पार्टिकल जो है और पेशेंट जो चोक हुआ रहता है उसको आराम है। ओके, तो ये हुआ चोकिंग। नेक्स्ट कन्वर्जन। कभी बहुत बार हम देखते हैं कन्वर्जन सीजर्स पेशेंट फिट्स आते हैं। आप मार्केट में जाते हैं देखते हैं तो एक बहुत भीड़ हुई है, वहां पे गर्दी है, सब लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। बेचारा वो लेटे बेटा पड़ा हुआ है, उसको फिट्स आती है, मुंह से झाग आता है, आंखें ऊपर क्या हो रहा है, एकदम पूरा बॉडी हिलती रहती है और सब लोग वहां पे तमाशा देखते हैं। तो ये बहुत बहुत बुरा सिग्नल है। तो अगर फिट्स का पेशेंट है उसको क्या करना है? देखो ये फिट्स जो है वो नॉर्मली फ्यू सेकंड्स या 2 मिनट के लिए देते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको तनाव लाने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना जब आप देखते हैं कोई पेशेंट तो फिट्स का पेशेंट। तो क्या करना है? फिट्स का पेशेंट अगर है तो सबसे पहले अगर हो सके जहां पर, क्योंकि जमीन के ऊपर जब लेटता है पेशेंट गिर जाता है और उसको फिट्स आती है तब वो इतना हिलता है, अगर जमीन अगर एकदम हार्ड सरफेस है तो उसकी इंजरी हो सकती है। तो सिर टपक टपक के यहाँ पे इंजरी हो सकती है, हाथ मारा जमीन तो हाथ को इंजरी हो सकती है। तो वो अगर जम अगर होता है तो उसको उठा के, जहाँ पे अगर कोई दुकान है, यहाँ पे शॉप है, जहाँ पे कोई मैट्रेस है या कोई टेबल है, जहाँ पे कोई भी सॉफ्ट सरफेस है या गार्डन है, वहां पे उसको अच्छे तरह से लेना है बहुत जरूरी तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन, माय डियर फ्रेंड्स, रिकवरी पोजीशन आई हैव टोल्ड यू, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि उल्टी जब फिट्स आती है तब उल्टी होने का चांसेस बहुत रहता है। उल्टी अगर कर देता है ऐसे पोजीशन में रखा तो उल्टी ऊपर बाहर नहीं निकलती, छाती में वापस चली जाती है और पेशेंट चोक होता है। तो जब फिट्स आते हैं तो पेशेंट को क्या करना है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करना है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में थोड़ा नेक उसका एक्सटेंड करना है ताकि एयर में जो है सांस लेने की नली है वो एकदम पेटेंट हो, अच्छे तरह से वो सांस लेता है। नेक्स्ट व्हाट यू शुड डू, उसका जो जॉ है, जबड़ा जो है वो एकदम घट हो जाता है, पकड़ के रहता है। तो ये जबड़ा जो है कभी अगर ऐसा पकड़ा तो ठीक है, पर कभी कभी इतना पकड़ता है कि दांत के बीच में उसके जीभ अटक जाती है और खून बहने लगता है, ब्लीडिंग, वो काटता है अपनी जबड़ा। तो ऐसे समय में क्या करना? तुरंत उसको उसका जॉ पकड़ के उसको जॉ नीचे करना है। और अगर आपके पास इस तरह का अगर गॉज रोल है, इवन यू कैन टेक दिस, ऐसा रोल करके उसको पेपर टेप डाल के, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, टेप लगा के उसको ऐसा रोल बना के दोनों 2 सेट्स ऑफ टीथ अपर और लोअर के बीच में आपको तुरंत डालना है। और कभी कभार इतना करता है कि क्या होता है, वो जो विक्टिम है उसको अनकॉन्शियस रहता है, वो क्या करता है? चबाते रहता है, इतना चबाता कि ये अंदर चला जाता है, रिस्क है। तो क्या करना? उसको स्टेबल करने के लिए, ओके, स्टेबल करने के लिए हम बाहर से भी ऐसे पेपर टेप लगा के उसको फिक्स करते हैं ताकि वो अंदर नहीं चले। पेपर टेप डाल के उसको फिक्स करते हैं ताकि वो दांत से उसका जीभ नहीं काटना चाहिए। ये करके लेफ्ट लेटरल पोजीशन में 2 मिनट के अंदर रुक जाती है। कभी कभार हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, सोडा लेके आते हैं, कोल्हापुरी चप्पल लेके आते हैं, उसके नाक के पास रखते हैं। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, नेवर डू दैट। सिंपल लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एक्सटेंड द नेक, ओपन द जॉ एंड प्लेस अ गॉज रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट के अंदर रिलैक्स हुआ तो ठीक है। अगर 2 मिनट के ऊपर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस, 5 मिनट तो अगर ऊपर मिल रहती है तो तुरंत उसको शिफ्ट करना है। डोंट वेस्ट टाइम, ये रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट। हम उसको रोक नहीं सकते। ये हुआ एपिलेप्सी कन्वर्जन। देन कट्स, मामूली सा कट, नाइफ है, ब्लेड है, सीजर है, कभी कट होता है। कट होने से क्या होता है? खून आता है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, अगर घाव, जब भी कोई भी घाव होता है, खून अगर बंद करना है, बहुत बहता है
ज्यादा करके हमने देखा स्काल्प के ऊपर जो कट, बच्चे गिरते हैं हमेशा यहाँ पे कट लेके आते हैं यहाँ पे, और लोग क्या करते हैं तुरंत कॉफी पाउडर लगाते हैं या कोई हल्दी का पाउडर लगाते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर आवर ब्लीडिंग टाइम इज 2 मिनट्स to 7 मिनट्स। कितना मिनट? 2 मिनट से लेके 7 मिनट हमारी कैपिलरीज ब्लीड होते हैं। तो 2 मिनट से लेकर 7 मिनट अगर हमने जहाँ पे कट है, समझो देखो अगर यही कट है, ये बस कट है, तो 2 मिनट और 7 मिनट के लिए मिनिमम 2 मिनट उसको प्रेस करके रखना है, दोनों एजेस जहाँ पे अगर घाव है, ये घाव को जो एजेस है उसको जोर से दबा के 2 मिनट के बाद छोड़ो। देखो खुद आ रहा है कि सभी का 2 मिनट नहीं आता, मेरा अगर 3 मिनट है, रेड्डी का 4 मिनट रहेगा, तो 2 मिनट के बाद छोड़ना। आ रहा है कौन? वापस दबा करेगा 3 मिनट के लिए या 4 मिनट, तब तक आराम से खून बहना। ज्यादा करके जहाँ पे स्काल्प में डरना कि घर के सब लोग एकदम टेंस हो जाते हैं, डर के मारे। मालूम नहीं क्या होता है उनको, डरते खून बहुत, ब्लड सप्लाई जो है हमारे स्काल्प का बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा भी घाव बहुत खून है। तो ऐसे कट्स को आपको सिर्फ प्रेशर देना, समझ में? देन वी कम ऑन टू फेंटिंग। बहुत बार देखते हैं स्कूल में, देखते हैं बच्चे जो बहुत असेंबली में खड़े होकर कभी गिर जाते हैं, जब बेड पे सोया हुआ सुबह 7 अलार्म बजते हैं, उठने के बाद वो गिर जाते हैं। स्कूल में असेंबली के बाद बहुत असेंबली चालू रहते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इस वजह से फेंटिंग, ये फेंटिंग क्यों होता है? ब्लड जो है नीचे वो ऊपर ब्रेन की तरफ नहीं चलता, यहाँ से जो ब्लड है वेन्स पे जो ब्लड है वो ऊपर नहीं जाता, यानी काफ मसल जो है इसके वो अगर वीक है, पंपिंग नहीं ठीक तरह से होता, या बहुत देर के लिए खड़ा होने के बाद खून नीचे हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से ज्यादा नीचे हो जाता है। तभी एक बच्चे क्या होता है, ब्रेन के अंदर अगर खून नहीं चला जाता, नीचे उतरने के बाद ब्रेन के अंदर खून नहीं चला जाता, तो बच्चे गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं। बहुत बार देखे, पूछते क्या है, अरे ब्रेकफास्ट नहीं खाया था क्या तुम? बड़ा 6 इडली खा के आया था, 2 मेंदू वड़ा खा के आया था, फिर भी फेंटिंग हो जाती है। दैट इज बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर ब्लड सप्लाई गोइंग बैक टुवर्ड्स द ब्रेन। मुझे याद है, मैं ऐसे नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट में फैकल्टी करके गया था, और यही विषय था फर्स्ट एड, और नर्सिंग स्टाफ आए थे ऑल ओवर इंडिया के। और जब जैसे मैंने की पॉइंट शुरू किया, तो मैंने देखा 4 नर्सेस एक लेडी को उठा के लेके जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? भाग के गया तो देखा, तो बाहर देखा तो वो फेंट हो चुकी, और चारों के चारों नर्सेस, नर्सिंग स्टाफ किचन में जाके कॉफी बनाने लगे। क्या हुआ था? सिर्फ ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं गया, और वो नर्स बेहोश हो, फेंट हो। क्या करना है उसको? सिर्फ उसका पैर ऊपर करना है, ताकि ब्लड जो है ऊपर पैर से तुरंत नीचे सिर की तरफ जाए। ऐसे सिर की तरफ जाने के बाद 2 मिनट के अंदर विक्टिम, वो बेचारे कॉफी लेके आई, वो कॉफी मैंने, ठीक है, आफ्टर ब्लड डोनेशन भी। तो हमेशा उनको लेट रखना चाहिए, प्रेफरेबली रेज द फुटेड, फाइन। सो दिस इज द वे यू कैन मैनेज हिकअप्स। हिचकियां आती कि नहीं? हिचकियां सभी को आती होगी। हिचकियां क्यों आती है? ओवर ईटिंग करते हैं, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तब हिचकियां आती है। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की जिनको आदत है उनको हिचकियां आती है, जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनको हिचकियां आती है, जो सॉलिड फूड एकदम ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, गर्मा गर्म भजिया मिर्ची गर्मा गर्म, तभी हिचकियां आ सकती है। एकदम ठंडी चीजें, आइसक्रीम आइस कोल्ड, हिचकियां आ सकती है। या इमोशंस की वजह से भी हिचकियां आ सकती है। हिचकियां क्या होती है? हिकअप्स क्या होता है? हमारे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, why there is hiccups? We have thorax, we have abdomen. There is a muscle called as diaphragm muscle, जो हमारे thorax और abdomen को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ये diaphragm muscle इरिटेट होता है, ज्यादा करके तीखा चीज जब हम खाते हैं, hot pungent food, तभी ये जो मसल है वो इरिटेट होता है। क्यों? फ्रेनिक नर्व करके जो है वो इरिटेट होती है, और मसल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जब मसल स्टार्ट, एक जो मसल जो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हिचकियां शुरू होती है। तो ये हिचकियां कैसे बंद करते हैं? ज्यादा करके हमने देखे, जैसे हिचकियां आया, अरे पानी लेके आ जाओ, पानी पीने से हिचकियां बंद नहीं होती। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, हिचकियां अगर बंद करना है तो क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स अगर आपके खून में अगर हम बढ़ाते हैं तो हिचकियां बंद होती है। तो किस तरह से ऑक्सीजन लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ाना है? सिंपल मेथड, पिंच योर नोज एंड माउथ, जितना हो सके उतना पिंच करके चुपचाप बैठो, हिचकियां बंद होनी चाहिए। या आपको क्या करना है? पेपर बैग, पेपर बैग
पेपर स्किन है. Yes. No, not that. Can you get me my bag? Will you please get my bag? Say, there is something called paper bags. अगर पेपर बैग्स है, बेस्ट थिंग आपका मुंह उस पेपर बैग में डालो बंद करके, अंदर सांस लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, लेना. जितना आप ऐसा करोगे कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में बढ़ जाता है और उसके बाद तुरंत बंद होती है. इज द बेस्ट वे टू डू. या तीन चार मोर देन तीन चार तीसरा आइस क्यूब ले लो और नेक ऑफ द नेक, यहाँ पे जो नेक ऑफ द नेक है यहाँ पे अगर आइस क्यूब लगा दे इसके बंद होगी. ओके, ये भी बहुत अच्छा तरीका. या उसकी जीभ पकड़ के खींचो इसके बंद होते हैं. मतलब वो बहुत क्रूड मेथड है, गाली मारेगा. उससे अच्छा कि बैग से, पेपर बैग से या नाक और मुंह पिंच करके या आइस क्यूब लगा के हम इसके बंद करवा सकते हैं. ठीक है. ओके, देन वी कम ऑन टू नोज ब्रीथिंग. नाक से अगर खून बहे, नाक से जब खून आता है तो किस तरह से उसको रोकोगे आप? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर देयर इज नोज ब्रीथिंग, डोंट मेक द विक्टिम लाई डाउन. अगर इस पोजीशन में रखा तो खून जो नाक से आ रहा तो अंदर छाती में चला जाएगा. नेवर मेक देम सिट इन द प्रोन पोजीशन. जैसे अस्थमा पोजीशन मैंने बताया, अस्थमा के लिए ये पोजीशन बहुत बेहतर है. अस्थमा के लिए, नोज ब्रीथिंग के लिए ये पोजीशन ठीक नहीं है. खून जो आ रहा है छाती के अंदर जा सकता है. बेस्ट थिंग लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन. जब भी नाक से खून, बच्चों को ज्यादा आदत है गोल्ड माइन जो है वो निकालते गोल्ड नाक में से. स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं हमारे पास नोज ब्रीथिंग. जब सर्दी होती है या हाई टेंपरेचर, हाई एल्टीट्यूड के पर जाते तब नोज ब्रीथिंग. ऐसे नोज ब्रीथिंग को क्या करना चाहिए? बेस्ट इज यू कैन जस्ट पिंच द नॉस्ट्रिल फ्रॉम वेयर द जहां से खून आ रहा है. अगर ये नाक से आ रहा है सिर्फ पिंच करना है. कितने मिनट के लिए? 2 मिनट्स, 2 मिनट से 7 मिनट. मैंने आपको कहा है रीडिंग टाइम कितनी रहती है? 2 मिनट से 7 मिनट. तो 2 मिनट के लिए आप ऐसा दबा दें. दोनों नाक से आ रहा है तो दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करके अगर सांस खांसे लोगे मुंह से लेना. या अगर आपको उससे भी अगर रुकती नहीं है तो इस तरह के गॉस पीसेस जो है, छोटे छोटे गॉस पीसेस जो है वो छोटा उसको रोल करके नाक में डाल सकते हैं. पैक, नेजल पैक जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का नेजल पैक नाक में डाल के उससे बाहर से प्रेशर तुरंत 2 मिनट या 7 मिनट के अंदर खून बहना बंद. देन वी कम ऑन टू टूथेक. ये वेरी कॉमन है, डेंटल पेन. दांत अगर दर्द होता है तो सिंपल गर्म पानी जो है ऐसे पैक्स में डाल के उसको गर्म पानी से जस्ट fermentation, hot water fermentation that helps in. or what you can do, you can use clove oil. लौंग का तेल, कापूस ले लो, कॉटन ले लो, उसके अंदर रुई के ऊपर आप क्लोव ऑयल डाल के जहां पे दर्द हो वहां पे दर्द बंद होती है. Then we come on to unconscious patient. Remember, अगर बेहोश पड़ा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको क्या करोगे? मैंने कहा था बेहोश अगर है तो तुरंत उसको शिफ्ट करना है, ज्यादा एरोगेरी नहीं करना. फिर भी आपको क्या कहा था मैंने? अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको रिकवरी पोजीशन में डालना बहुत जरूरी. लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एक्सटेंड द नेक is the best way to keep an unconscious patient. Okay, and shift the patient. Don't waste your time. वॉमिटिंग अगर होती है, उल्टी होती है तो क्या करना चाहिए? सिंपल, अगर दवाएं नहीं है, 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच नींबू का जूस, लाइम जूस, लेमन जूस मिक्स करके अगर आप 1 घंटा पहले अगर खाना खाने के पहले अगर लेते हैं तो उल्टी होने का संभावना बहुत कम होती है. इस तरह से ये सब सारी इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको चर्चा की. अभी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो हमको स्नेक बाइट में भी देना पड़ता है, ड्राउनिंग में भी देना पड़ता है, या इलेक्ट्रिक बर्न्स, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना बहुत जरूरी है. और एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देना बहुत. जब देयर इज नो रेस्पिरेशन वी हैव टू गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. व्हेन देयर इज नो हार्ट पंपिंग, देयर इज नो पल्स, we are supposed to give something called as external cardiac massage. Now I will just demonstrate to you how to give this. I will tell you what are the different methods of artificial respiration. So I will just demonstrate here. Can you do that? Siddesh, you want to become a volunteer? Yes. 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 Fine. Even I want a child also as a volunteer.
There are three different methods of artificial respiration. Okay, one very common which I will show you in an adult. Second method also I will show in adult, and third method I will show you in a child. Okay, so Sairam, the audio is off. how to know that the whether is breathing or not? See, if he is a male victim, you should see the abdominal movement. See, this सांस ले रहा है. See the abdominal movement. If she is a female victim, you have to see the chest movement. Remember this. Second thing, what you should do, there is a three different methods by which you can give artificial respiration. Very important. The first method I'm going to demonstrate. In first method, what you should do, first thing, you should make the patient lie down and to see whether he is breathing or not. If he is not breathing, that means there is something in the windpipe which is blocking his air entry. The first thing you should see if there is a drowning case or if he has vomited or is a convulsion patient or is a snake bite patient, he has vomited and all the vomiters has gone in this air passage. We have to remove these vomiters. We have to remove the things which are there in his trachea, in this windpipe. उसको निकालना बहुत जरूरी है पहले. Just giving artificial respiration is not going to help. So what you should do? First thing you should try to change the posture. I told you recovery posture कौन सी है? This is the posture. Put him in the left lateral position. The moment you put him in the left lateral position, what you should do? If he is not breathing, try to remove all the possible vomiters which is there in his chest. Okay. Then again you can keep him down. What you can do? You can just pinch his nose. Okay. Try to blow. Now here I'm not going to blow in his mouth. Everybody is worried about COVID. Okay. But you pinch his nose, open his jaw. Before that, I wanted to mention one more point. To keep his head stable. Victim की अगर head stable रखनी है, you can use a towel or something, a roll, cloth, which you can make a roll, and just place it below the neck. So his head is fixed. He is not going to move his head. Not only that, this posture will help because when you see the chin in the upright position, maximum point is the chin. See, this chin guy on the is top. The moment you see this position, remember his airway is patent. पाइप जो है सांस लेने की जो विंड पाइप है वो एकदम सीधा हो चुका है, आराम से उसको एयर जा सकता है. This is the position. Okay, then what you should do? Pinch his nose, open his jaw, and you have to blow. Very strong blow. I'm sure you have to take deep breath. Very fast. 7 to 8 times in just 15 seconds or 10 seconds. You have to do 7 to 8 times. Initially, very fast. Okay. Once you do this, release and see whether the air is coming up from this nostril. Yes, it is coming. Yes, that means you are on the right track. Then what you should continue this. This is called as mouth-to-mouth respiration. Now, only here what I am doing, I am just opening his mouth, pinching his nose, taking deep breath. I am not doing it here. I am supposed to do it here. If you are getting worried about the mouth-to-mouth, lip-to-lip contact, then use a cloth which is porous. Okay, just a cloth. Sairam, can I just request the video is not that clear. Video is not that clear. Can you just get back a bit so we can see the face of the patient? Fine. Okay, now? This is the way. This is the way we give no, artificial this way respiration with cannot be mouth-to-mouth respiration. Then we come on to the second method. Now, in second method, it is called as Nelson's method. Now, what is this Nelson's method? In Nelson's method, you have to make the victim lie down on his belly. See, you have to lie down on his belly. Okay, remove the cloth. See, you have to make him lie down on his belly. Then what you should do? You should try to flex this way. Both the hands, this hand palm should place on the hand, and this forehead should come here. This is the position. Now, when you have this position, next step what you are going to do is you are going to sit near his head end. Okay. Then you have to place your hand in such a way,
Can you see this axilla, armpit, or axilla, what we call it? This armpit. Now, the moment this armpit, this is the point where the armpit is. So, exactly at the lower end of the armpit, here should be a palm. The palm should be such that the fingers should go downwards and outwards. The thumb should touch here. Both the thumbs should touch. Okay? It is not here or here. Exactly, you see the armpit, draw an imaginary line. See, this is the armpit. This is the armpit, this is the imaginary line. You have to place your hand, palms on this line. Your fingers, both the hands should go down, outwards. Fingers should touch here. What you should do? Keep your hand straight. Don't have to bend. If you bend and do it like Bhangra, you're doing a Bhangra Punjabi dance. Never do Bhangra. What you should do is you hold the palms very firmly, get up, go down, hold its palms, and pull it back. This you should continue for 12 minutes, 12 times per minute. This is called a Nelson's method. Okay? But the next method, which I'm going to demonstrate to you, is a child. Suppose a child goes to the beach and he gets drowned. This is Nelson's method. I hope I'm not injured. There is no. Fine. Okay. Now, he is a child but gone to Cornwall beach and he got drowned. And he is collapsed now. Just collapsed. No, just collapsed. This boy has collapsed. Okay? Okay. This boy is no more. He is not only conscious, he is unconscious. And then I see that he is not breathing. He is not breathing at all. So what we do here? We have to give artificial respiration. Either you can give mouth-to-mouth respiration. You know mouth-to-mouth respiration, what I had demonstrated to you first. Second method, you can do a Nelson's method, which I also demonstrated to you. The third method is called a Shepherd's method. And what is this Shepherd's method? Okay. In Shepherd's method, you make the victim lie down. Okay. Hands. One hand should come on this straight. The other hand should come over his forearm. Over his arm, sorry. His palm, the palm should come here. His chin should take the support of the forearm. This is the position. And the moment he is kept in this position, what you are supposed to do? You are supposed to come near his hips. Both your thighs should be touching his thighs. My thighs will touch his thighs. Fix. Okay. You have to place the hand for this. Okay. And then you can just go. It's a very simple method. In children, in adults, this method you can do 12 times per minute. 12 times per minute. So this procedure, what you do, should take about 5 seconds. After every 5 seconds, one push. So 12 times in 1 minute. 12 times in 1 minute. Okay. Now in children, it is not 12 times, just 20 times. So you have to be a little faster. Fix. Okay. By doing this, you have to remove all the block which is there in the windpipe. And definitely, this will, if you continue this even for 2 hours, my dear friends. How many hours? You can even continue this for 2 hours and you can save a life of a child. Okay? Don't get bored by doing this. और जो भी आप करेंगे ये सेवा भाव से करना चाहिए. You are not doing some medical treatment. यहाँ पे पूरा सेवा भाव से करना चाहिए. तभी आपको सफलता अच्छी मिलेगी. Okay, my dear friends. Now I will show you external cardiac massage. Very important. I want volunteer. I want Siddesh. It's very rough and tough. Okay. I want Siddesh live. Okay. So in external cardiac massage, why you want to get external cardiac massage? Because the patient, his heart is not pumping well. His heart has stopped pumping. How you come to know? By checking his pulse. The moment you see that you cannot feel his pulse, I told you the outer border of the forearm, exactly at the end of the wrist, place the 3 fingers and you can feel the pulse.
The moment you find that the pulse is not there, that means the heart has stopped beating, you are supposed to use external cardiac massage. Now, how to give external cardiac massage? Remember, again, when you're giving external cardiac massage, my important point which I want to really highlight, if you are a right-hander, you are supposed to stand on the right side of the victim. If you are a left-hander, you will stand on the left side. Where exactly you have to place your hand palm? Very, very important. See, we have a bone called as chest bone. This is the chest bone. See, यहाँ पे जो गड्ढा है, can I remove this for a moment? Siddesh man, yes, and permission. See, here can you see this notch, this point? From this point till the end, where the ribs see, the last rib, you can the last rib from here. This point, this bone is called as chest bone, या breast bone. Medically, we call it as sternum. Okay. Now, this sternum is divided into three parts: upper 1/3, middle 1/3, and lower 1/3. Now, we are supposed to give pressure on the lower 1/3. Remember, in the picture में दिल यहाँ होता है. दिल हमारा कहाँ होता है? ये हड्डी के पीछे होता है. Okay. So we are supposed to give push over the lower 1/3. So ये गड्ढा है. यहाँ पे उसका लास्ट रिब है. ये जो भाग है उसको मैं डिवाइड करता हूँ अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3. लोअर 1/3 के ऊपर यहाँ पे मैं हाथ रखता हूँ. If I am a right hander, that means my right hand is strong, right? So I can give better push with my right hand. Right hand से मैं अच्छी तरह से प्रेशर दे सकता हूँ, right? तो मैं क्या करता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड जो है, जो वीक है, वो पहले प्रेस करता हूँ, बाद में राइट हैंड से उसको प्रेशर. ये भी पोजीशन ठीक है. या हम क्या कर सकते हैं, दोनों पाम्स पकड़ के लॉक कर सकते हैं, इंटरलॉक. ऐसे करके बाद में वही लोअर 1/3 के ऊपर प्रेशर देके उसको प्रेस करते हैं. प्रेशर जब दोगे कितना डीप जाओगे? 2 इंच डीप जाना है. कितना डीप जाना है? 2 इंच. ऐसा मत समझो कि डॉक्टर कृष्ण ने कहा था फुट रोलर लेके आ जाओ, कितना भी डीप जा रहा हूँ, उतना पंक्चर लेने की जरूरत नहीं है. क्या करना है, इंटरलॉक करो, upper lower 1/3 and start on the lower 1/3. You can give pressure. When you're giving pressure, you can stand like this, sit, you can kneel down and you can give pressure. When you're giving pressure, every second one push. Hand should not be put again. There should not be any flexion of the elbow. Elbow bend नहीं होना चाहिए. तो क्या होने वाला है, भागना होने वाला है. आप डांस करोगे, डांस नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, एक्शन कर लेना. Okay, for 60 minutes, 60 seconds. In 1 minute के लिए 60 minutes. If you don't have any person, if you find that the victim has his heart has stopped and is not beating, दोनों प्रॉब्लम है, हार्ट भी नहीं काम कर रहा है, सांस भी नहीं ले रहा, तो 1 मैन शो अगर आप अकेले हो तो आप अकेले भी कर सकते हैं. ऐसे करके 1 2 3 4. So when that you can do, or you can place your chin and you can give artificial respiration. But for that you require good practice. I hope this session was interesting or beneficial. I really don't know how far it has helped you all, but if you have any questions or any doubts, we can just have a small question answer session. Okay, thank you very much. I hope we are on time. Ready? Omkar, anyone has any questions, you can lead it. Yeah, Sairam brother, there is one person named Panduran. Please unmute yourself and ask your question. Mr. Panduran, his hand is raised. Sairam, Mr. Panduran Kumbhalkar, your hand is raised. Is there a question? You can unmute and ask. There was one question coming up. You can unmute and ask yourself. The question answer session is open.
Sairam. Sairam. Volume is very low. खाना I really खाने can't hear you, madam. खाना खाने के टाइम अगर हिचकी आए तो क्या करना? खाते खाते अगर हिचकी आए तो क्या करना? क्या? I can't hear you. Can you repeat? खाना Can you खाते repeat समय that? I was able to hear that. I'll repeat it. उन्होंने पूछा है कि अगर खाते खाते हिचकियाँ आए तो क्या करना है? खाना खाते समय हिचकियां. हाँ. Is this your question, sir? हाँ हाँ हेलो बराबर. मैम. हाँ खाना खाते बराबर. समय हिचकियां तो आपको पहला खाना खाना बंद करना चाहिए. उसके बाद जैसे मैंने कहा आपका नाक और मुंह पिंच करके 20 सेकंड या आधा मिनट के लिए आप रोक सकते हैं. उसके बाद हिचकियां बंद होने के बाद वापस आपका मील्स चालू कीजिए. या आपको पेपर बैग अगर है या कोई भी बैग, पॉलिथीन बैग जो आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं, जब आपको पॉलिथीन बैग मिलती है वो इस्तेमाल करके उसके अंदर आपका मुंह डाल के, नाक और मुंह डाल के पूरी अच्छी तरह से बंद करके सांस लेना है, छोड़ना है. कंटिन्यूसली चालू. जैसे आप 15-20 सेकंड या आधा मिनट करोगे आपकी हिचकियां बंद होगी. या आपके पास अगर आइस है, आइस आप लगा सकते हैं पीछे. इस तरह से आप आपकी हिचकियां बंद करवा सकते हैं. Thank you, sir. Sairam. वेलकम. Okay. Sairam. As time is pressing, I would request if there are questions, we will compile them and we'll pass it on to you. If you get time, you can please answer them. Is that okay? Yes, and if you really want such sessions offline, I'll be more happy to have such sessions with you all. It will be more interesting. So we are actually planning for offline session. Yes. Okay. There's a question, Vivekanand Patil. Sir. Yeah. Please go on. Sairam. दोतोर Yes. म्हाका ज्योतना काय त्रास जायना. ज्योतानी सदां हांव शिवराक अबाउट पंजन बी खाता पळय ज्योतना हय. असो फुकट जायना. I eat in medium speed. But when I Yes. eat with curd rice or butter आणि ताका बरोबर जेवता पळय Yes. तेन्ना म्हाका हय. मातशें फुकट जाता. कित्याक लागून ते? No, that is because of acidity. More of all these curds and causes. You should not consume curds late evening, late night, even for the dinner. You can consume in the afternoon. But afternoon also you should avoid. If you have such problems, you should avoid because it can cause more of acidity, and then you have this problem. So avoid those things which can trigger problems for you. Okay. Hello. Sir. Vivekanand, Yes. sir? Okay. Vivekanand Patil. Yeah, Vivekanand Patil. Sir, as the time is pressing, we'll not take any more questions here on the video call, but we'll compile them and we'll pass it on to you, sir. So we'll proceed with the next item. Are you ready? Sir, you're muted. Very grateful to you all for attending this session, and I'm giving my special thanks to Reddy and Siddesh Bhai who have volunteered me help me in this online session. Thank you. Okay. Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. Brothers and sisters, you were listening to Dr. Nilesh Usgaonkar on medical emergency. Thank you very much, sir, for such an insightful and enlightening session. As rightly pointed by Vedant, 1.5 lakh people die due to no proper first aid. Dr. Nilesh were kind enough to inform us and also show us demo of some basic key points in first aid, basic universal antidote, proper way of bandage, SOPs in burn, bite and snake insects, fractures and rice model in fractures, asthma, fits and pains, artificial respirations. Thank you once again, Dr. Thank you once again, Dr. Nilesh. Dear brothers and sisters, you were listening to Dr. Nilesh in fifth session of Athiratin Appatti
a specially designed program by James participants of State of Goa for second batch of Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation 2021. We are looking forward to meet you once again in our coming session of Athirati and Apatti. The links will be shared on the group. Now I please request Mr. Reddy to please play the Shanti Mantra. Jai Sai Ram. Saram Rudra Reddy, can the Shanti Mantra be played? Yeah, doing it. Sure. Okay, Sairam, I think there is a technical glitch, so we'll take the Shanti Mantra by self. Om Shanti 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 Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।